afternoon, viewers. Welcome to RCI's नवशिखर चैनल स्टूडियोज। नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आज हमारी जो टेलीकॉन्फ्रेंस की शेड्यूल है, हम टॉपिक जो है वो है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग फॉर पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंडनेस। तो और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिज बालाजी, ब्रिज बर्थवाल, who has been here before also, and along with her Bipasha Sengupta is also here. Both Brij ji and Bipasha are from Saksham Daksh, which is new, comparatively younger organization that they have initiated, that works based in Noida, located in Noida, and they work specifically in the area of persons with visual impairment and additional disabilities. Just like to share with you that Brij is the project director of Saksham Daksh and has been working with children with visual impairment for many years, and her main objective is to help children with these disabilities to be included in the mainstream, whether it's in education or in all the specific areas. She has a diploma in orientation and mobility in visual impairment, and has almost 2 decades of experience, having worked earlier with the National Association for the Blind in Delhi, in their regular setup, and in the multiple handicapped unit of NAB. And Brij mentioned the last time that she was here, very interestingly, that she finds that every day she is learning something new from the children. So this is a very interesting philosophy, and it's a very useful thing for us all to remember. Bipasha ji is here with us also from Saksham Daksh. She is the General Secretary of Saksham Daksh. She is an expert, originally an expert in the field of mental retardation, having worked for almost 17-18 years with Jan Madhyam, and then subsequently moved to the National Association for the Blind in Delhi at their MHU, that is their multiple handicapped unit. Has been working for almost 12 years with them at NAB, and has acquired considerable experience having worked with deafblind children. She also has participated and undergone training in the field of deafblindness at the UK. So welcome Bipasha ji and Brij both to our studios today. We are going to talk about what most of us have some kind of a basic information about. We all think that we have this preconceived notion that deafblindness is a very complex disability, and we request you to tell us about how, the strategies and the interventions for children with deafblindness. Thank you. एक्चुअल ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी डेफब्लाइंड बच्चों के लिए जो है ये बहुत बड़ा एरिया है। जैसे मेरे शरीर का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बिना मैं प्रणाम नहीं कर सकती हूँ, ऐसे ओरिएंटेशन और मोबिलिटी इकट्ठा जब तक नहीं होता तो एक मतलब अधूरापन रह जाता है। एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। यदि मैं अपना बात कर लूँ, ओरिएंटेशन है क्या? ओरिएंटेशन जैसे मैं इस रूम का बात ले लूँ, मैं विजुअल इम्पेयर नहीं हूँ, मुझे हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है, तो मुझे पता है मेरे राइट साइड में ब्रिज मैम बैठे हैं, उनके आगे केतकी जी बैठे हैं, मेरे आगे टेबल है, साइड में कंप्यूटर है, ये मैं आराम से देख सकती हूँ। मेरा ओरिएंटेशन अंदर आते ही पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। लेकिन जब मैं एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन का या बच्चे का बात करती हूँ, तो विजुअल इम्पेयरमेंट होने के नाते वो देख के जो इन्फॉर्मेशन लेना है, रूम के चारों तरफ उनका क्या है, उनको किसी से बात करना है तो किस तरह वो देख के बात करेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन उनको थ्रू विजन नहीं मिलता है। तो लेकिन उनके पास एक जो पॉजिटिव चीज है वो है ऑडिटरी, वो सुन सकते हैं।
सुन के उनको जैसे यदि ब्रिज मैम मेरे बगल में बैठे हैं और मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उन्होंने पानी पी के ग्लास रखा, वो आवाज सुन के मैं समझ सकती हूँ कि अच्छा इन्होंने पानी पी के ग्लास रख लिया या वो उनको प्यास लगी थी। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए ऑडिटरी है तो उनका इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति या एक बच्चा जिनको दो इम्पेयरमेंट एक साथ होता है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट भी है या और साथ में ऑडिटरी हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है, उनके लिए आप खुद सोचिए कि कितना एक मजबूरी स्थिति आता है कि वो कैसे सीखे, कैसे वो देख के जाने, कैसे वो सुन के समझे। इसके लिए हमें फिर ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वो आप सबको पता है। स्पेशल एजुकेटर, डेफ ब्लाइंडनेस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होता है और उनके बहुत बारीकी से, बहुत पेशेंस के साथ उनको ये जो ओरिएंटेशन हर चीज़ों का, आप खुद सोचिए कि दुनिया में कितना सारे चीज़ें हैं, तो हम शुरुआत कहाँ करें चीज़ों का ओरिएंटेशन। एक डेफ ब्लाइंड बच्चा जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके साथ कहाँ से शुरू करें? उनका अपना शरीर से उनका ओरिएंटेशन शुरू होता है। उनको हम दिखाए कि कैसे तुम ताली मार सकते हो, कैसे तुम जमीन में पैर पटक सकते हो, कहाँ तुम्हारा सर है, तो अपना बॉडी से उनका ये ओरिएंटेशन शुरू होता है। लेकिन उसके लिए जो हम स्पेशल एजुकेटर हैं, हम जो एक्सपर्ट्स हैं, हमें बहुत केयरफुली, बहुत पेशेंटली उनको वो सब ओरिएंटेशन एक चीज़ों का, शरीर का, अपना शरीर से दूसरे शरीर का देना पड़ेगा। यदि मैं उनको ही दिखाऊं कि आपका दो हाथ है, बार बार मैं उनको ही दो हाथ दिखाते रहूं, उनको यही पता चलेगा कि मेरा ही दो हाथ है। हो सकता है वो क्लियर नहीं होंगे कि और दूसरे लोगों का दो ही हाथ होता है। जब तक हम उनको नहीं दिखाएंगे कि जैसे तुम्हारा दो हाथ है, मम्मी का भी दो हाथ है, पापा का भी दो हाथ है, आपका क्लास टीचर का भी दो हाथ है, ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे ओरिएंटेशन अपने से शुरू करके धीरे धीरे उसको जनरलाइज करो, तो उनको पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। जब हम बोलते हैं कि लैक ऑफ साउंड एंड लेस ऑफ साइट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके सीख के लिए। क्या वो बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो बिल्कुल मूवमेंट पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको मूवमेंट बिल्कुल, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हो सकता है कभी उन्होंने कोशिश किया, उनको धक्का लगा, वो बैठ गए, तो उनको डर तभी से शुरू हो गया, फिर वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, उनके मन में डर बैठ गया। इसीलिए हमें बहुत आराम से उनको ये जो डर है, ये डर उनको हटाना पड़ेगा। जी, आप जो पॉइंट कह रही हैं, दिस इश्यू अबाउट ओरिएंटेशन, यू वर सेइंग हाउ इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन इज एंड हाउ we have to compensate for the fact that there is no visual and auditory sort of input that the children are getting to get an orientation of their surroundings and their immediate the environment that they are in. और आप जो कह रही हैं कि we have to intervene and work with the child, and you start first by working with them and getting them to understand their own body, and then take that and then generalize it to others in their immediate family, in their immediate surrounding. That's the kind of thing. There's one point that I was just wanting to ask: is deaf blindness, is it a total disability? Are people with deaf blindness totally deaf and totally blind? नहीं, डेफ ब्लाइंड जो हम बोलते हैं बार बार डेफ ब्लाइंड बच्चे, उनका एक्चुअल यदि हम देखें तो 4 हिस्सों में हम उनको मतलब उनको नहीं, ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, टोटली डेफ होते हैं, जो बिल्कुल लाइट परसेप्शन भी नहीं होता उनको, और एकदम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है। एक होता है जिनका पार्शियल साइट होता है,
बट टोटली हेयरिंग इम्पेयर होते हैं, एक होता है जिनका पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है एंड टोटली विजन लॉस होता है। फोर्थ कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो पार्शियल हेयरिंग एंड पार्शियल साइट होते हैं। I see. So it could be a combination of any of these situations. इवन बहुत रेयर ही होगा कि बच्चे टोटली ब्लाइंड और टोटली डेफ हो, कहीं ना कहीं उनमें रेजिडुअल सेंस होता ही होता है, आइदर विजन में आइदर हियरिंग में। I see. Okay. सो जैसे हम पीछे छूट गए थे कि उनको जो मूवमेंट करते वक्त जो फियर होता है और बिकॉज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड विजन इम्पेयरमेंट उनको बहुत वो लैग ऑफ मोटिवेशन होता है उनके बीच। वो बिल्कुल, क्योंकि मैं देख भी नहीं सकती और मैं सुन भी नहीं सकती, तो मैं चीज़ों की तरफ आगे कैसे जाऊंगी, मैं चीज़ों को कैसे छूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ब्रिज मैम आज इतना अच्छा सुंदर सूट पहन के आए हैं, मैं कैसे उनको पूछूंगी ये सूट कहाँ से लिया। तो ये सब जो मेरा अंदर क्यूरियसिटी है तभी हो रहा है कि मैं देख पा रही हूँ, मैं जान पा रही हूँ कैसे कॉम्बिनेशन का सूट वो पहने हैं। लेकिन जो डेफब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके अंदर वो नहीं कुछ होता है। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेजी हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ते, चलना नहीं चाहते। लेकिन हमें हर चीज उनको सिखाना पड़ेगा, हमें उनको ले जाके एनवायरनमेंट में कभी ले जाना पड़ेगा, कभी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा उनके लिए। बहुत बार हमें अडॉप्ट करना होता है चीज़ें, बहुत चीज़ें। जैसे यदि मैं एक स्नेक के बारे में उनको जानकारी दूंगी तो मैं तो कोई ओरिजिनल स्नेक उठा के उनको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ उनको स्नेक का आकार दिखाने के लिए, कैसे होता है दिखाने के लिए। तो इसमें मुझे एडेप्टेशन लेना पड़ेगा, मुझे एक रबर का स्नेक लाके उनको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे यदि वो एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं बच्चे बिकॉज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, तो उनको उसके लिए हमें तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो क्या है, अभी आपको हम एक छोटा सा सीडी दिखाएंगे जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम कैसे बच्चों को चीज़ों के पास ले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और वो धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं हाथ लगाने में, वो डरते नहीं हैं। तब आप देखिए देखे ये बच्चा, छोटा जो बच्चा था अनुभव। अब आपको शायद मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अनुभव डेफब्लाइंड बच्चा है
तो मैडम इतना बात क्यों कर रही थी अनुभव के साथ? या तो उसको टोटली सुनाई नहीं देता, या सुनने में बहुत मुश्किल है, तभी तो डेफ ब्लाइंड कैटेगरी में आया। लेकिन हम जो स्पेशल एजुकेटर हैं, हम उसमें बिलीव रखते हैं कि चाहे आप टोटली डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ क्यों ना काम करो, आप हमेशा उसके साथ बोलते रहोगे। आप साइन दोगे, जो टैक्टाइल साइन होता है, आप साइन दोगे, लेकिन बोलते भी रहोगे। उसमें क्या होता है, नेचुरल बोलते वक्त हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसका एक कम्युनिकेशन एक बच्चों के साथ बिल्डअप होता है। यदि मैं आराम से उसके साथ बात करूं तो मेरा शरीर में जो एक स्मूथली वाइब्रेशन होगा, उसको लगेगा मैम बहुत कूल उसमें मेरे साथ बात कर रहे हैं। यदि मुझे सडनली बच्चों ने कुछ गलत काम किया और हम एकदम से क्या कर रहे हो ऐसे किए, तो वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली मेरे शरीर में क्रिएट होगा और उससे उसको पता चलेगा। बार बार जब वो रिपीट होता है डे टू डे लाइफ में, तो उसको पता चलता है कि इसमें मतलब गुस्सा, एंग्री हुए मैम हमारे ऊपर। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ जब हम काम करेंगे, जब आप काम करोगे, बहुत केयरफुली, बहुत स्टेप बाय स्टेप हमें वो काम शुरू करना है। अभी हम आपको एक सीडी और दिखाना जाएंगे कि जैसे एक्सप्लोर जो करते हैं बच्चे, कैसे धीरे धीरे वो, या तो कुछ बच्चे थोड़ा चल के लेते हैं जिनको थोड़ा सा विजन होता है, कुछ बच्चे थोड़ा रिटार्डेशन प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं होता है तो थोड़ा कोशिश करते हैं, कोई बच्चे बिल्कुल बैठे रहते हैं। तो थोड़ा सा आप एक छोटी बच्ची कविता की देखिए एक्टिविटी, वो कैसे चीजों को एक्सप्लोर करके ले रही है, देख रही है, उसको छोड़ के दूसरा चीज को ले रही है। आप देखिए। आप आपने देखा कविता कैसे चीजों को उठा रही थी, ले रही थी, मुंह तक जेल लेके जा रही थी, थोड़ा बहुत आवाज सुनने का कोशिश कर रही थी। आपने ये भी देखा कि टीचर ने उसको उठा के एक जगह से, क्योंकि वो साइकिल नहीं छोड़ रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। कभी कभी मजबूरी से टीचर को भी ऐसे करना पड़ता है कि वो एनवायरनमेंट को चेंज करके वो दूसरा एनवायरनमेंट में बच्चे को ले जाना चाह रहे थे, ताकि उसको और चीजों के बारे में पता चले और चीजों का ओरिएंटेशन हो। लेकिन कुछ बात के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि बच्चे को बहुत सिक्योर फीलिंग देना है। डेफ ब्लाइंड बच्चे टच से बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं कोई साथ में ना रहे तो कभी भी हमें उनको ऐसे महसूस नहीं करवाना चाहिए कि वो इनसिक्योर है।
तो एकदम वो हट जाएगा, वो फिर नहीं सीखना चाहेगा। जो भी हम उनको सीख देंगे वो बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस से शुरू करेंगे। यदि सोचिए कि मैं बच्चों को छोटा छोटा पौधे के जानकारी देने के लिए उनको गार्डन में ले गई और एक गुलाब का फूल दिखाते वक्त उसका हाथ में कांटा चुभ गया, वो जिंदगी में शायद कभी भी उस पौधे के पास नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस में ही हमने उसको चोट पहुंचाया। तो बहुत बारीक चीजें हो सकता है, जिनका विजन है, जिनका हियरिंग है, वो एक बार चोट लग जाए लेकिन उनको ये पता है कि दोबारा नहीं लग सकता है, मैं सावधान हो जाऊंगी। लेकिन इन बच्चों को पता नहीं होगा, तो हमें अलर्ट रहना है। हम उनको बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस से काम शुरू करेंगे और बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन हम टीचर्स बच्चों को देंगे सिखाते वक्त, टीचर इतना ज्यादा क्लियर रहे कि बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। टीचर कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ओहो मैंने क्या प्लान किया था, अभी मैं सामान लेने चली जाऊं, अच्छा ठीक है मैं अभी पानी जरूरत है, कुछ गेम खेलना है, वाटर प्ले करना है, तो ये सामान नहीं है, ऐसे नहीं। फिर हमने क्या किया, बच्चे को छोड़ दिया, हमें नहीं पता, हम सामान लेने चले गए, पानी लेने चले गए, बच्चे उधर अकेले बैठे हैं, वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हमें इतना प्लान वे में काम करना पड़ेगा। शुरू में जब काम शुरू करेंगे उनको एक एक चीजों के बारे में ओरिएंटेशन देना है, उनको बताना है, फिर हम शुरू करेंगे काम। और डेफब्लाइंड बच्चों के साथ काम करते वक्त हमें एक स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है, जो मैं थोड़ा सा ब्रिज मैम के साथ करके आपको दिखाना चाहती हूँ। कभी भी हम बच्चों को कोई चीज का ओरिएंटेशन देंगे, सोचिए ये हमारे सामने रखा ग्लास क्यों ना हो, ब्रिज मैम थोड़ा ग्लास दे दीजिए। सपोज सोचिए ब्रिज मैम एक स्टूडेंट है जो डेफ ब्लाइंड बच्चा है, मुझे इन ग्लास के ओरिएंटेशन ब्रिज मैम को देना है, तो मैं उनको ऐसे ले जाके आप उनके हाथ से नहीं टच करवाऊंगी, क्योंकि उनका वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या मेरे हाथ में लग जाएगा। और सबसे ज्यादा जब हम दही, जैम, ऐसे मैशी थिंग बच्चों को एकदम से स्पून में उठा के दे देते हैं ना, बच्चे का पता नहीं क्या होता है, एकदम उनका फेशियल एक्सप्रेशन आप देखते रहना। उनको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा जैम यहाँ लगा दीजिए, वो थोड़ा सा चटे, थोड़ा सा दही लेना है, पहले स्मेल करवाइए, धीरे धीरे उनको इंट्रोड्यूस करवाइए। और जैसे आप कोई चीज उनको मतलब टच करवा के दिखाना चाहते हो, तो पहले अपना हाथ रखिए, ताकि उनको पता है मेरे पहले और कोई है, तो चोट मुझे नहीं पहुंचेगा, कुछ भी होगा इसको पहले लगेगा। तो आप फिर ऐसे कीजिए। आप सवाल कर सकते हैं कि फिर वो सीखेगा कैसे। हाँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों मैं धीरे धीरे क्या करूंगी, अपना हाथ हटा लूंगी। थोड़ा थोड़ा तो टच उनको इधर उधर से मिल ही रहा है, तो जब मैं हटा लूंगी फिर वो एक हाथ से देखेंगे, फिर दो हाथ इकट्ठा करेंगे, उसको देखेंगे, उसमें पानी डाला होगा तो उसको पी के हम दिखाएंगे। धीरे धीरे ऐसे वो ग्लास, फिर पानी, उसका यूज सब कुछ जानेंगे वो। Very interesting आपने जो कहा, that you have to start by, as you said, encouraging exploration. Yes. And initially making the child feel secure. Secure, right. And जो आपने एक बहुत यूजफुल एग्जाम्पल दिया कि हम फूल पौधे के बारे में बात सिखाना जाएंगे, तो चाहे अगर निकलते हैं तो if we introduce them to a rose and they get pricked by a thorn the first time, then that'll immediately give them a negative feedback and they may not ever want to learn or go out into the garden at all. So we have to be acutely conscious of these aspects when we start our work on orientation of children with deaf blindness. Okay. Yes. ओरिएंटेशन के लिए, ओरिएंटेशन को पूरी तरह से जब हम सीखेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है जितना सेंसेस है उसका डेवलपमेंट। यदि सेंसेस डेवलपमेंट ठीक से ना हो तो ओरिएंटेशन में बहुत मुश्किल आता है। जैसे आप सुन रहे हो कि बार बार हम बोल रहे हैं डेफ ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड। डेफ ब्लाइंड मतलब विजुअल एंड
हेयरिंग प्रॉब्लम है, उनको इम्पेयरमेंट है, तो उनके पास बचा बहुत कुछ है। उनके पास टच है, उनके पास स्मेल है, उनके पास और भी बॉडी पोस्चर, बैलेंस, ये सब चीज़ें उनके पास है। तो वो सब सेंसेस को हमें डेवलप करना पड़ेगा जितना। जैसे सोचिए, जैसे मैंने पहले बोला कि डेफ ब्लाइंड मतलब ये नहीं है कि टोटली ब्लाइंड और टोटली डेफ। डेफ ब्लाइंड में वो भी बच्चे आते हैं जिनको पार्शियल साइटेड और पार्शियल हेयरिंग होता है, या टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है। तो उन बच्चों का जो भी थोड़ा सा बचा हुआ विजन है, बचा हुआ हेयरिंग है, उसको हमें और डेवलप करना है। उसका बहुत अच्छी तरह से वो कैसे यूज कर पाए उसको वो दिखाना है, उनको वो बताना है। जैसे यदि सोचिए कि थोड़ा सा विजन उनके पास बचा है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि कितना दूर से वो देखता है, कितना बहुत बड़ा चीज को देखता है या बहुत छोटे चीज को देखते हैं, क्या वो कॉन्ट्रास्ट में दिखता है, वाइट बैकग्राउंड में होगा तभी डार्क चीज को देखेगा। तो ये सब हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जितना विजन उसके पास बचा है वो अपना रोजगार जिंदगी में उसको यूज तो करे, उसको और चीजों का जानकारी तो मिले उसके थ्रू। इसीलिए बोलते हैं जो सेंस को हम डेवलप करना चाहेंगे, जो ट्रेनिंग हम देंगे सेंसेस का, वो 5 फेज से निकलता है। उसका हर सेंस का डेवलपमेंट का 5 फेजेस होता है। जैसे टॉलरेंस है, अवेयरनेस है, रिकॉग्निशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन है। आप टॉलरेंस क्या है? यदि मैं एक बच्चे को कोई पौधा या कारपेट कुछ भी सोचिए, मैं उसको ओरिएंटेशन देना चाहती हूँ कि पत्ता कैसे होता है, पौधे का पत्ता कैसे होता है, पहले तो वो टॉलरेट करेंगे ही नहीं। वही डर, वही उसका मतलब नहीं, लैक ऑफ मूवमेंट, या उसके लिए वो जाएंगे ही नहीं। तो धीरे धीरे उसका टॉलरेंस लेवल हम लोगों का बढ़ाना है। फिर जब उसका वो टॉलरेट करने लगेगा तो उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। कहीं भी आप पूरा गार्डन में एक पौधा तो नहीं देखोगे, जैसे एक पौधे का पत्ता वो देख रहे हैं तो साथ में और भी पौधा है, उसी पौधे में पत्ता ओल्ड जो लीव्स होता है वो बड़ा होता है तो न्यू लीव्स छोटे होते हैं, उसका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। तो उनका धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है पत्तों के बारे में। अब जब वो कहीं पे भी वो पौधे में पत्ता देखेगा तो वो रिकॉग्नाइजेशन उसका हो जाएगा, क्योंकि हम उसको पत्ता दिखाने के साथ साथ उसका पत्ते का साइन भी दे दिया। यदि वो टोटली डेफ ब्लाइंड बच्चा है तो वो कहीं पे भी पत्ता देखेगा, पत्तों को वो पत्ता बोल के रिकॉग्नाइज कर पाएगा। फिर आएगा उसका इंटीग्रेशन। आपने गार्डन में ये पौधे में पत्ता देखा, वो पौधे में पत्ता देखा, वो रिकॉग्नाइज किया। अब वो आपने गार्डन में पत्ता देखा, पार्क में जाके पत्ता देखा, कोई मुगल गार्डन में जाके पत्ता देखा, तो उसका इंटीग्रेशन वो कर पाया कि ये भी पत्ता, वो भी पत्ता, बड़ा पत्ता भी पत्ता, छोटा पत्ता भी पत्ता। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन पत्ता का बहुत कुछ होता है। यदि हम फ्लावर के साथ वाज में लाके उसको रखें, वो भी एक एप्लीकेशन होता है। हम क्राफ्ट एक्टिविटी में उसको पेस्ट करते हैं, वो भी उसका एप्लीकेशन हुआ। हम उसको प्रिंट करते हैं, लीव्स प्रिंट करते हैं, वो भी एप्लीकेशन हुआ। लेकिन वो सब ये ऐसे नहीं जान पाएंगे, वो हमें उनको सिखाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो ये सब जान पाएंगे। अभी एक सीडी हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो भी कविता का ही सीडी है, छोटा सा। बीच बीच में आप देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और जानकारी मिलेगा। आप ये सीडी थोड़ा देख लीजिएगा। कविता एक छोटी बच्ची है जिसको आप पहले भी देखे हैं।
सीडी में देखा, मैंने फिर दोबारा क्यों दिखाया आपको ये सीडी, क्योंकि पहले तो हमने ये देखा था कि कविता चीजों को एक्सप्लोर कर रही है, कविता देख रही है, मुंह तक ले जा रही है, उसका आवाज सुनने का कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम जैसे हम बोलते हैं कि डेफ ब्लाइंड बच्चों का आईज है उनका हैंड, माई हैंड इज माई आईज, तो उनका जो टच है, हम बोलते हैं देखो बच्चे ये देखो, तो बहुत लोग हमें टोकते हैं, देखेंगे ये तो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं, ये देखेंगे कैसे, उनका वो देखते हैं अपने हाथों से। यदि आप मेरा आंख बंद कर दोगे, आंखों में पट्टी लगा दोगे, तो तब मेरा हाथ भी शायद मेरा आंख बन जाए, मैं भी छू के देखूंगी, मैं भी कोशिश करूंगी दरवाजा कहाँ है, मैं भी, मेरा तो एक आइडिया तो है कि दरवाजा में वो होता है, क्लीड होता है, हैंडल होता है खोलने के लिए, दीवार में वो ऐसे ही दीवार चलते चलते आपको हैंडल नहीं मिलेगा, तो वो फिर मुझे ओरिएंटेशन हो गया। ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं वो देखते हैं टच के थ्रू, दोनों हाथों से, पैरों से, अपने शरीर से, तो वो टच जो है उनका बहुत, आपको बहुत धीरे 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 उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सब चीजें। यदि आप उनको एक बॉल का ओरिएंटेशन देंगे और आप छोटे बच्चे हैं बोल के एक छोटा प्लास्टिक बॉल देंगे, तो कल जाके जब वो अपने बड़े भाई का फुटबॉल देखेगा लेदर वाला, उसको पता नहीं चलेगा कि ये भी बॉल है। इसलिए आपको जब आप टच के थ्रू उनको जानकारी दे रहे हैं, उनको ओरिएंटेशन दे रहे हैं, तो आपको जैसे अलग अलग टेक्सचर दिखाना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग शेप्स दिखाना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग साइजेस भी दिखाना पड़ेगा। आप प्लास्टिक बॉल भी उसको दिखाओगे, बॉल है छोटा बॉल, लेदर बॉल भी आप उसको दिखाओगे, बड़ा फुटबॉल, लेदर का छोटा बॉल भी कॉस्को बॉल है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, तभी वो जानेंगे इतने तरह का बॉल होता है, उसका अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग साइज है। ऐसे जो शेप्स है, अलग अलग शेप्स, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उनको। सब कुछ जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तभी बच्चे बहुत क्लियर होंगे, वो फिर जनरलाइज कर पाएंगे कि ये चीज वहां पे मैंने देखा था तो यहाँ है, तो ये सेम चीज है। जैसे आप बच्चों को ग्लास के बारे में सिखाएंगे, और हम घर में ज्यादातर स्टील के ग्लास यूज करते हैं, तो हमने स्टील का ग्लास बच्चों को सिखा दिया। कल किसी के घर जाके कांच के ग्लास में उनको पानी दिया और हमने पूछा साइन लैंग्वेज में क्या है, तो फिर वो ग्लास नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि टेक्सचर तो उनको दूसरा लग रहा है, तो फिर वो कैसे बोलेंगे, हो सकता है शेप्स भी दूसरा हो ग्लास, कांच के ग्लास का। इसीलिए वो आपको फिर डिफरेंट चीजें आपको दिखाना पड़ेगा विथ शेप्स, साइज, टेक्सचर। अभी मैं ब्रिज मैम को बताऊंगी टैक्टाइल डिफेंसिव के बारे में, थोड़ा सा ब्रिज मैम आपको बताएंगे। आपने ये जो टैक्टाइल सेंस के बारे में जो कही अभी बात, this is a very critical aspect of working with deafblind children, because we have to exploit that tactile sense to the utmost because there is no vision and no hearing. Yes, and that, as you said, rightly said, it works like the eyes of the child. They, through their sense of touch, through their sense of feeling, they identify and they learn about what is in their surroundings. So this is a very important point that you've mentioned. Okay. अभी बिपाशा ने आप लोगों को बहुत अच्छा ओरिएंटेशन के बारे में बताया कि डेफ ब्लाइंड बच्चों का ओरिएंटेशन के लिए हम लोग अगर एज ए टीचर या एज ए स्पेशल एजुकेटर ये सोचें कि हम लोग एक ही है कि बच्चा क्लास में है और सारी चीज़ें कलेक्ट करके वहाँ उसके पास नहीं लाई जा रही हैं। यहाँ ये हो रहा है कि हमारे इस डेफ ब्लाइंड बच्चे के लिए हर वो स्किल्स वहाँ तक पहुँचाई जा रहा है बच्चे को जहाँ जहाँ वो अवेलेबल है। पत्ता तोड़ के क्लास में नहीं लाया, बल्कि पत्ते के पास बच्चे को ले जाया गया। तो बच्चे के माइंड में एक जो टीचर्स के साथ जो रैपो बिल्डअप हुआ है, क्योंकि डेफ ब्लाइंड बच्चे के साथ जो टैक्टाइल बता रही हैं कि टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 95% लोग तो जो हम देखकर काम करते हैं, डिस्टेंस एंड नियर विजन हम लोग जो कर रहे हैं, हियरिंग इज ऑल्सो डिस्टेंस एंड नियर विजन, लेकिन हमारे यहाँ इन बच्चे में दोनों चीज़ का लॉस अगर है तो ऐसी सिचुएशन में टैक्टाइल जो है हमारा बहुत मेजर एरिया बन जाता है। कई बच्चे ऐसे हमने अपने एक्सपीरियंस के दौरान देखे जिनमें टैक्टाइल डिफेंसिव रहते हैं, जिनको कि आप बहुत सारा टेक्सचर दिखाइए, बहुत वैरायटी,
एक टीचर के हैसियत से हम लोग वैरायटी ऑफ टेक्सचर दे सकते हैं कि उनको सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, गीला भी है, मुलायम भी है। लेकिन ये करने के बाद देखा कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको बहुत ही हार्ड प्रेशर चाहिए कि आप उनको मैं अगर हल्के से टच करूंगी तो वो शायद मेरे को जोर से धक्का देके पीछे को पुश कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके हाथ के ऊपर जोर से इस तरह पुश करूंगी तो शायद दे लाइक्स। और सॉफ्ट वाला एक पीस या ऊन या रुई दूंगी तो शायद दे डोंट लाइक, बट मैं उनको वही खुरदरा फुट मैट दूंगी तो वो उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो इनका डिफेंसिवनेस है कि कई लोगों को हार्ड और कई लोगों को सॉफ्ट चीजों का टेक्सचर पसंद आता है। हमारे पास भी ऐसे 1-2 बच्चे मिले, बहुत रोते रहते हैं क्लास में, तो हमें लगता है मालूम नहीं ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, मे बी उनको पेट में दर्द है, मे बी उनको प्यास लगी है। लेकिन ऐसा लगता है कि समहाउ जब उनके साथ जो एक्टिविटी हो रही है उनको वो सॉफ्ट बैलून, जेली या क्ले बहुत सॉफ्ट, वो एक्टिविटी उनको बिल्कुल नहीं करनी। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि विपाशा ने बताया कि बॉडी का ओवरऑल पार्ट बच्चे आइदर हेड, ईयर, बैक, टोज, जहां से भी वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकें हमारी ओरिएंटेशन मोबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन वो जहां जहां से चलते फिरते ढूंढते उठाते लेते जा रहे हैं वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर उनके ब्रेन में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आती है कि मुझे ये अच्छा लगा तो उसको खेलना है। आपने देखा होगा एक बच्ची कविता जीव के साथ लेके अपने टॉय को प्ले कर रही है, बिकॉज उसको वाइब्रेशन बहुत पसंद है, उसको टंग के साथ इंटरेस्ट है, और वो जब कोई भी एक्टिविटी करेगी तो वो कान लगा के उसकी एयर को फील करना चाहती है। सो इन बच्चों का ये बेसिक नीड्स है जिसको हम लोग इग्नोर ना करें, इनको देखें कि वाकई ये टच कैसा है। मैं कहूँ कि नहीं मेरे पास 2 ही मटेरियल है और मुझे यही इसमें कराना है, तो जो स्पेशल एजुकेटर है, जो टीचर्स हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन ऐसे नहीं करनी पड़ती कि वी हैव टू परचेज फ्रॉम मार्केट कि ये महंगा लाओ वो महंगा। हमारे सराउंडिंग में, वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, हमारे सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए आप घास है, पत्ता है, जहां जहां ले जाके पर्पल सॉल्व होता है ओरिएंटेशन का। पर्पल सॉल्व होता है कि ओरिएंटेशन से अपने आप को रिलेट करने का, कि बच्चा छत के एकदम खुले आसमान के नीचे सिक्योर हो गया है या जब तक वो शेड के अंदर था तब तक सिक्योर है। वो कैसे पता लगा? अभी विपाशा बोली कि फेशियल एक्सप्रेशन वो हमको देते हैं, और ये फेशियल एक्सप्रेशन हमको दिखाता है कि वाह ये एटमॉस्फेयर बच्चे को अच्छा लगा, ये नहीं लगा। थ्रू सेम टच के लिए भी है कि टच मेजर है और इसमें हमें बार बार नई हर वो चीज दिखानी है जो इनके लिए बहुत वैरायटी हो, जिसको ये कभी सिचुएशन बदलते बदलते, समय बदलते बदलते कभी भी हाथ पड़े। जैसे दरवाजा बोला, हर दरवाजे का अपना अलग तरीका है, कोई धक्का दे के खुलता है, कोई नीचे को क्लच करके, कोई राउंड करके। तो बच्चे को जब तक हम ये दिखाएंगे नहीं, टैप, आप गोल टैप भी है, पुश टैप भी है, ओपन टैप है, विदाउट टचिंग टैप भी है, तो हम जब तक बच्चों को बताएंगे नहीं उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी स्किल थ्रू टच दी जाती है। और टॉलरेंस पावर की जो अभी विपाशा ने बताई कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका टॉलरेंस पावर बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि रैपो बिल्डअप इनका मेन मेजर एरिया होता है। अगर हम इनके साथ रैपो नहीं रखते तो ये टॉलरेंस नहीं, मे बी मेरी वॉइस उनको अच्छी नहीं लगी, मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा सुन तो नहीं रहा लेकिन कहीं ना कहीं पार्शियल हियरिंग में उसको कुछ एक पिक सुनाई देती है जिसको वो रियलाइज करता है। फिर वो अपना क्या साउंड देता है वो मुझे समझना है। मे बी ही लाइक्स, मे बी ही वांट्स टू प्ले, तो उसने ई करा या उसने मुझे पुश किया, और उसका पुश अगेन टच, उसने मुझे छुआ, छूने के बाद मे बी उसने मेरे हाथों को अपनी चीक्स पे ले गया कि किस मी या हग मी या टैप और माई चीक्स। तो मुझे ये समझना है कि व्हाट ही वांट, बिकॉज थ्रू टच, सो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द टच। So next speaker. Thank you, Preeti. Defensiveness, sensory defensiveness is apparent in certain other disability areas also. Even when we've had discussions earlier, children with autism also, they have this sensory defensiveness. And as you was rightly saying, that is very important to understand what the child is particularly sensitive to, what they like and what they don't like. They may not like to have something smooth, they may prefer hard, or the other way around. So and then use that understanding to work with the child. Yes, we can't force them कि नहीं ये करना ही करना है. You have to give change.
तो आपने सुना ब्रिज मैम से कि कैसे डिफेंसिव होते हैं बच्चे, और स्पेशली डेफब्लाइंड बच्चे जिनको हमेशा डर रहते हैं, हमेशा लैक ऑफ मोटिवेशन रहते हैं, वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बहुत स्पेसिफिक बच्चे को आप देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक चीज से वो एकदम अलग रहते हैं, कोई सॉफ्ट चीज, कोई हार्ड चीज। ऐसे मैंने देखा कि आम लोगों में भी ये बात होते हैं। जैसे मुझे बहुत ज्यादा वो जो फार वाला टॉयज होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि बच्चे ऐसे हैबिट होता है, तो उनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि स्पेसिफिक कोई चीज़ों से बच्चों का ऐसे कुछ रिजेक्शन हो तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो चीज़ हम कोई एक चीज़ हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऐसे कोई बात नहीं होगा। तो आप ऐसे सेंस जो जितना सेंसेस है उसका डेवलपमेंट में आप देख रहे हो कि कैसे कैसे हम डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं टीचर्स बच्चों का हर सेंसेस। ऐसे हम स्मेल भी स्मेल सेंस के बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि टच के साथ स्मेल सेंस भी डेफब्लाइंड बच्चों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिसके हेल्प से बच्चे बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओरिएंटेशन उनका अच्छा होता है। यदि हम उनको यदि बोले कि किचन, यदि बच्चे देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते तो किचन कहाँ है उनको कैसे पता चलेगा। कभी कभी किचन कहाँ है हमें वो स्मेल ऑफ फूड से भी पता चलता है कि अच्छा खाने का खुशबू आ रहे हैं, और रूम में जहाँ जितना रूम है घर के अंदर और कहीं से खाने का खुशबू इतना ज़्यादा नहीं आता है जितना किचन से आता है। तो उसको फिर हम स्मेल के साथ ओरिएंट करके बच्चों को सिखा सकते हैं। बार बार उनको स्पेशली स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल देते हैं। जैसे पूरी आप फ्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा स्मेल आएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग स्मेल से बच्चे ओरिएंटेड हो जाता है कि ये किचन है। ऐसे ही आप बाथरूम ओरिएंट कर सकते हो, बाथरूम ओरिएंट कर सकते हो थ्रू सोप स्मेल। जहाँ पे हम नहाते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, हम साबुन यूज़ करते हैं डिफरेंट स्मेल का, हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को धीरे धीरे हम उनको ओरिएंट करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये बाथरूम है। जब हम स्मेल ले रहे हैं, ऐसे तो हम बहुत चीज़ों से पता करवा सकते हैं। बाथरूम में हमेशा टॉवेल लटकते हैं तो हम टच से पता करवा सकते हैं, लेकिन जब हम स्मेल को डेवलप कर रहे हैं तब हम बाथरूम का ओरिएंटेशन थ्रू स्मेल ऐसे ही देंगे। डिफरेंट सोप्स, डिफरेंट परफ्यूम, पाउडर, अलग अलग पाउडर का स्मेल ऐसे देंगे। ऐसे ही ये सब हो गया आपका पूजा रूम। बहुत हमारे हिंदू घरों में हर घर में पूजा रूम थोड़ा अलग से किया जाता है। तो पूजा रूम यदि हम बच्चे को ओरिएंटेड करना चाहते हैं, वहाँ से अगरबत्ती का सुंदर स्मेल आता है, फूलों का खुशबू आता है, तो बच्चे को पता चलता है कि ये पूजा रूम है। ऐसे ही ये तो हो गया इंडोर ओरिएंटेशन, रूम घर के अंदर जो है। ऐसे आप रास्ते में जा रहे हो और कहीं से आपको अच्छा बिस्किट बनाने का खुशबू आ गया, तो हम तो बिना देखे ही बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई बेकरी है। ऐसे बच्चों को हमें ओरिएंट करना है। खुशबू आया, उनको थोड़ा जगाना है अंदर से, कुछ अलग सा स्मेल मिल रहा है, उनको साइन से बताना है। फिर ले जाके वो जो स्मेल और बेकरी दोनों को हमें एसोसिएट करना है कि ये स्मेल यहाँ से आता है और इसको बेकरी कहा जाता है, यहाँ बिस्किट्स बनता है। ऐसे अलग अलग चीज़ों से आप उनको ओरिएंट कर सकते हो थ्रू स्मेल। फिर ऐसे ही हम जिन बच्चे को थोड़ा सा विजुअल इम्पेयरमेंट होने के बाद भी थोड़ा फंक्शनल विजन जिनका रह जाता है, वही फंक्शनल विजन को हमें और डेवलप करना है। तो उसके बारे में भी ब्रिज मैम आपको अभी बताएंगे कि कैसे ऐसे फंक्शनल विजन को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ब्रिज मैम। Yeah, I just like to to interrupt for a minute to remind all our viewers our studio telephone numbers are being scrolled at the bottom of your screen. एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पे आप फ़ोन कर सकते हैं, और यहाँ स्टूडियो पे बैठी हुई ब्रिज जी और विपाशा जी से आप लोग डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं
You can interact with her and get clarifications of on any matters. And we're discussing a very interesting and comparatively less known disability areas. So I encourage the viewers who are watching today to call in. Our toll-free number is 1800 112008, and we have another telephone number which is 011 265 11613. You can also fax us at 011 265 11609. So do call in and ask questions and interact and make the full use of this very interesting session that we are having at our studios, talking about orientation and mobility for children with deaf blindness. Bridget? जो विपाशा ने अभी सेंसरीज के ऊपर बात की है, मैं सेंस ऑफ साइट की बात करती हूँ कि हम लोग जो अपनी भाषा है उसमें कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि मैम इनको तो दिखाई नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता, आप इनके साथ बोलते क्यों हो? पहली बात। दूसरा, जब ये देख नहीं रहे हैं और आप बार बार बोलते इधर देखो इधर देखो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि जो बच्चे डेफ ब्लाइंड होते हैं शायद वो मेंटल रिटार्डेड होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो बच्चे डेफ ब्लाइंड होते हैं क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, और जब तक आप उनको टच नहीं करोगे, उनके पास नहीं आओगे, वो आपको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सेंस ऑफ साइट में ये है कि जिन बच्चों में रेजिडुअल सेंस होता है, थोड़ा सा विजन होता है, उस विजन को वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ करना है वो सिखाते हैं, क्योंकि हम सारे सेंसरीज की बात कर रहे हैं यहाँ। टू डेवलप द रेजिडुअल सेंस, कई बच्चे कहते हैं कि मैम डॉक्टर ने बोला है, या पेरेंट्स बोल देते हैं बच्चे को एडमिशन कराते समय, मैम इसको जो दिखता है ना, आप कोई ऐसा काम मत कराना जिससे इसकी आई पे स्ट्रेन पड़े और उसकी विजन चली जाए। एक्चुअल में जब हम लोग बच्चे का एडमिशन करते हैं तो ओवरऑल टीम बैठती है जो लेती है बच्चों को, उसमें थेरेपिस्ट होते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट के क्लिनिकल रिपोर्ट के ऊपर ध्यान देके फिर हम फंक्शनल वर्क करते हैं। तो उस समय पता लगता है कि कौन बच्चे, कई बच्चे एल्बिनोज होते हैं जिनको आप ओरिएंटेशन के लिए या बाहर एकदम धूप में ले जाओ तो वो पूरा हाथ आपके अपने आंखों के ऊपर रख लेंगे, और मैं उसको कहती हूँ कि ये अंदर इतना अच्छा काम करता है, बाहर आके क्या हो जाता है इसको। सो वो मॉडिफिकेशन हमको देनी है कि इस बच्चे को अगर ये एल्बिनो है तो मैं इसको कैप पहनाऊं और डार्क ग्लासेस पहनाऊं तो शायद ये मोबिलिटी में या बाहर जाने में अपनी उस विजन का जो उसके पास है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, अपने लिए रास्ता ढूंढ सकता है, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और साथ साथ टेबल टॉप अगर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, सुन नहीं रहा, तो टीचर बिल्कुल जितने डिस्टेंस में बैठी है उसके सामने बैठ के ज्यादा कंफर्ट है कि वो एकदम उसके लेवल पे हो, और टेबल इस कंफर्ट पोजीशन में हो कि जितनी भी चीजें स्प्रेड की हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है। ये नहीं कि टेबल बहुत मल्टी कलर है और मल्टी कलर में आप एक ऑब्जेक्ट रख के बोलते हैं उसको कि इसको बनाओ या इस कलर को पहचानो और इसका सिमिलरिटी ढूंढो, तो शायद वो हमारी मिस्टेक है कि हम मल्टी कलर की टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखकर फिर उसको कह रहे हैं कि विजन, जो विजन है उसको यूज कराओ। तो जो विजन असेसमेंट करते हैं या हम जो विजन के ऊपर काम करते हैं, हमको फ्लैट टेबल, हमें देखना है बच्चा डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है या लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर डार्क को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये देखने के लिए हमें काम करना है, और फिर देखना है कि कई बच्चे कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि इसको केन क्यों दी है, इसको तो दिखता है चलने दो, बट केन या चलना या विजन को ज्यादा से ज्यादा यूज करना उनके लिए बहुत अच्छा है कि सपोर्टिव है। वो एटलीस्ट चलने फिरने के लिए, अपना काम खुद करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए वो अपने रेजिडुअल विजन को अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्टिविटी में आपने देखी, जो हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हाथ जरूर आता है कि हर चीज टेबल पर उनको ढूंढती है, शेप्स को ढूंढती है, साइजेस को पता करती है, फिर टीचर एक साइज उसके हाथ में रख के दूसरा उससे कंपेयर करने को बोलती है, देन स्मॉल बिग के लिए साइन के थ्रू बताती है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। सेम टेक्सचर के ऊपर काम करते हैं, इवन कलर्स के ऊपर काम करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ अगर टोटली डेफ, टोटली ब्लाइंड है और कभी कभी लगता है कि इसको कलर बताने का क्या है, लेकिन हम बालों के बारे में, टीथ के बारे में, अपने कॉम्प्लेक्शन के बारे में, शू के कलर के बारे में वी शुड टेल कि आपने ब्लैक कलर का शूज पहना है या व्हाइट कलर का शूज पहना है, मेरे बाल ब्लैक हैं। तो ये सब चीजें हैं कि हमें देनी है और दे सकते हैं। हम ये ना सोचे कि इसको तो दिखता नहीं है, बेकार बता के इसको क्यों वो अपसेट करे कि कलर के बारे में फिर जानेगा। हम ग्रीनरी की जब बात करते हैं, प्लांट्स है, जब बच्चा चलता है और पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता कुरकुर करता हुआ आवाज और एक सॉफ्ट पत्ता जब टच करता है तो डिफरेंसेस पता लगता है कि दिस इज ग्रीन और ये ड्राई है, तो ये नीचे क्यों गिर गया और ये ऊपर ही क्यों है, तो उसको तोड़ा गया है।
ये सब डिफरेंसेस विजन के थ्रू बाय टच दिया जाता है, क्योंकि जितने भी बच्चे विजन वाले, जो बात है पार्शियल विजन होता है, सबका अलग अलग होता है। कोई सेंट्रल विजन फोकस होता है, किसी का साइड से विजन से थोड़ा दिखता है, किसी को पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। बट मैं अगर कहूँ कि तुम इतने अच्छे से बता रहे हो, मैंने लाल रंग का सूट पहना है, मैंने चूड़ी पहनी है, लेकिन मेरी बिंदी ढूंढो कहाँ है, तो वो जो एक स्मॉल स्मॉल पॉइंट है वो चीज़ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो एक मुश्किल होती है उनके लिए। और ऑब्जेक्ट्स के जो वेरियस, जैसे वेरिंग डायरेक्शंस होती हैं कि स्क्वायर रखा है और उसके ऊपर कोई एक डिजाइन बना है, उसको अगर पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अच्छा आपको कुछ दिख रहा है, एक होल हुआ हुआ, तो ऑब्जेक्ट पूरा दिखाया, बच्चे ने पूरा हाथ से छुआ, लेकिन जहाँ होल है उधर हाथ नहीं रख पाता बच्चा। और हम लोग जो यहाँ आया है कि एनकरेज टू इमिटेट एक्शंस, जो तो बच्चा एक्शन की जब बात है, जो देख रहा है तो हम उसको कहते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो तुम करो। लाइक पीछे एक असिस्ट में जो उसके साथ काम कर रहे हैं वो खड़ा है और उसके हाथ को दिखता है, तो हाथ को हिलाना कि डू लाइक दिस, मैं बाय कर रही हूँ, या आपको नीचे बैठा रही हूँ, या कर रही हूँ, या लाइक क्लीन कर रही हूँ। तो मुझे देखना है कि कितने डिस्टेंस से वो बच्चा मुझको इमिटेट कर रहा है। बट अगर बच्चा टोटली डेफ और टोटली ब्लाइंड है, तब उसकी जो इमिटेशन है वो बदल जाती है, बजाय देखने के वो टच होती है। अगर जब हम बच्चा घर जाता है तो हम बच्चे को बाय करने के लिए उसका हाथ पकड़ के अपने पाँव पे, लाइक विपाशा ये दिया विपाशा ने, और मैंने बोला कि अच्छा छुट्टी हो गई, हम आप घर जा रहे हैं, सो बाय बाय। सो दिस इज, ये एक वे है कि बच्चे को, और घर के लिए लेने के लिए हम दोनों हाथ पकड़ के बच्चे का इस तरह साइन देते हैं कि घर जा रहे हैं, से बाय बाय। सो यहाँ इमिटेशन ये रहा है कि उस बच्चे ने मेरे हाथ के थ्रू या टीचर्स के हाथ के थ्रू इंफॉर्मेशन ली है कि अब क्या हो रहा है। और अगर साइट होती है तो सामने डिस्टेंस में रख के देखते हैं कितने डिस्टेंस से वो आपको इमिटेट कर पा रहा है। सो ये है विपाशा। This was another, just like to sort of reiterate this point. So आपने जो पहले कहा, tactile sense of course is one of the most important senses to use for working with persons with deaf blindness. But जैसे आपने smell के बारे में पहले बताया, और अभी sight. Now these two we have to really work to sort of maximize the abilities. Like in the area of mobility, we need develop the all residual senses. Oh, I see. Like because mobility is a part की हम लोग कहते हैं कि independent skill है. So overall senses पे we have to work. Okay. ऐसे इसीलिए जो हम जितना रेसिडुअल विजन उनका रह जाता है बच्चों का, उनको और डेवलप करने के लिए उनको हम हर कोने से दिखाते हैं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, और जानने का भी कोशिश करते हैं कि कौन सा एरिया, कौन सा साइड से वो अच्छा देख पा रहे हैं। तो फिर जब हम उनको एजुकेशन देंगे, जब हम उनको टेबल टॉप एक्टिविटीज करवाएंगे, तब हम ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे चीजों को। यदि बच्चा सोचिए कि कॉर्नर से दिखता है और मैंने बीच में चीज रखा, तो फिर वो बच्चा नेचुरली घुमा के अपना साइड को ऐसे ही लाएगा ताकि वो कॉर्नर से ही चीज को देख पाए। लेकिन जिनको ये जानकारी नहीं है, वो सोचता है कि बच्चा या तो मजाक कर रहा है, या उसको एनर्जी लेवल कम है, या वो मन नहीं दे रहा है काम में, तो बार बार घुमा के सीधा करते हैं। लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वो कर रहा है, उसका कॉर्नर विजन बचा है, तो उसको हमें डेवलप करना है। जैसे ही यूज कर रहा है करने दो, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बार बार बच्चा यदि अपना सर को ऐसे करके काम करे, तो उसका फिर नेक में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, उसको पेन फील होगा बार बार ऐसे करने से। तो उसको हमें एडप्शन कुछ उसके लिए यूज करना पड़ेगा, कि या तो हम उसके लिए रीडिंग टेबल कुछ रखें ताकि वो ऐसे देख पाए, ऐसे कुछ हमें उसको, या पीछे कुशन दे, कुछ करके हमें उसको देखना पड़ेगा। तो अभी आपको पता चला है कि जितना विजन बचा होता है उसको और डेवलप करने के लिए हम कैसे स्ट्रेटेजी, क्या तरीका अपनाते हैं। अब हम आएंगे हेयरिंग के ऊपर। यदि बच्चों को कुछ हेयरिंग बचा है, यदि बच्चा प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आवाज वो सुन सकते हैं, तो उसको फिर हम हेयरिंग सेंसेस को हम कैसे और डेवलप करें।
उसके लिए जैसे अभी अभी आपको हमने बोला था कि स्मेल थ्रू आप कैसे ओरिएंटेशन क्रिएट करोगे, ऐसे सेम मैं बोलूंगी हेयरिंग। पहले मैंने क्या बोला था, किचन ओरिएंटेशन आप दोगे जब स्मेल का स्मेल सेंस डेवलप करोगे तो थ्रू स्मेल, फूड स्मेल। लेकिन जब आप थ्रू हेयरिंग किचन का ओरिएंटेशन डेवलप करेंगे तो आपको देना पड़ेगा बर्तन का आवाज। किचन में ही हम बर्तन धोते हैं, या किचन में बर्तन का प्लेट रखना, ग्लास में पानी भरना और स्पून से कुछ हिलाना, आवाज शरबत बनाना, तो ये सब जो आवाज है किचन से आता है। तो तब जब हम हियरिंग सेंस डेवलप करेंगे तो हम ये आवाज से उनको किचन का ओरिएंटेशन देंगे। मैंने आपको बोला था जब स्मेल की बात कर रहे थे हम, बाथरूम का ओरिएंटेशन आप स्मेल थ्रू दोगे, सोप या पाउडर या आप परफ्यूम ऐसे। लेकिन जब हेयरिंग का डेवलप करना है, हेयरिंग सेंस को, तो आप टैप खोल दोगे, बाथरूम का टैप खोल दोगे तो पानी का जो आवाज है उससे फिर उनको पता चलेगा कि ये बाथरूम है। इस तरह से आप अलग अलग चीज को अलग अलग हेयरिंग से उनको ओरिएंटेशन दोगे। ऐसे ही बाहर का ओरिएंटेशन भी आप अलग अलग एनिमल साउंड उसको डिस्क्रिमिनेशन करना, या अलग अलग जो गाड़ी का आवाज है, कभी ऑटो रिक्शा का आवाज तो कभी बस का आवाज, कभी साइकिल का टिंग क्रिंग आवाज, तो ये सब हम उनको वहां तक ले जाना पड़ेगा। बाहर आउटडोर एक्टिविटी के वक्त हमें बोलना पड़ेगा, देखो अभी एक आपने आवाज सुना, एक भारी आवाज हू करके चला गया एक बस, और लेकिन छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट है तो छोटा छोटा आवाज जो हमें उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा थ्रू हेयरिंग, उनको ओरिएंटेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ सेंसेस और रहते हैं, उसके बारे में भी ब्रिज मैम आपको बताएंगे। ये जो विपाशा ने अभी हेयरिंग का बताया, हियरिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो जब चलते फिरते हैं तो अलग अलग उनका वाइब्रेशंस होती है। जैसे टैप खुला, नल खुला और नल से जो पानी बहा, तो आप शायद हम नहीं एहसास कर पाएंगे। हम अगर आंख भी बंद करेंगे, कान भी बंद करेंगे, तब भी हम कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इन बच्चों के साथ अगर काम करके जो पाया है, जब हमने ब्लाइंडफोल्ड किया और ईयर मोड लगा के कान बिल्कुल बंद करके देखा, तो जमीन के ऊपर जो कंपन होती है ना, आप यहाँ से चलेंगे और वहां पे कंपन है तो ऑटोमेटिकली देखेंगे जब बच्चा यूं बैठा था वो यूं हो गया एकदम से। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो जमीन पे जो कंपन आई है वो वाइब्रेशन पैरों के थ्रू उसके पास पहुंची है। और ये जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है काइनेस्थेटिक सेंस। जो सेंस होता है, हियरिंग है, विजन है, स्मेल है, टच है, उसी के साथ एक काइनेस्थेटिक सेंस है कि विजुअल इम्पेयर्ड या डेफ ब्लाइंड बच्चे को या बड़े को अगर हम उनके साथ काम करते हैं तो उनमें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। जो फियर अगर होगा तो बैलेंस डगमगाएगा, और बैलेंस डगमगाता है तो वो जिगजैग होता है, रास्ता सीधा होने की बजाय लंबा होता चला जाता है, और दरवाजे तक पहुंचने के लिए लॉस्ट ऑफ स्पेस वाली कंडीशन आ जाती है, क्योंकि मेंटल मेकअप नहीं है, तैयारी नहीं है उसकी। और फिर बैलेंस बिगड़ने से पोस्चर बिगड़ जाता है। पोस्चर क्या होता है? हम कई बार देखते हैं कि पोस्चर में उनके शोल्डर झुक गए, हेड एकदम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो उस पोस्चर को भी इसमें कंट्रोल करते हैं। प्रेशर कैसा होता है? क्योंकि जब हम चलते 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 सडनली, आज तो जो न्यू बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें बहुत मॉडिफिकेशंस हैं, रैंप भी होगा और फ्लोर का सरफेस भी डिफरेंसेस होंगे, उभार होगा तो फ्लैट भी होगा। लेकिन जितनी पुरानी बिल्डिंग्स या पुराने स्कूल्स या पुराने ऑफिस या बैंक्स या कहीं, इधर हम लोगों को वो सब नहीं मिलता। तो चलते चलते फर्श में चलते ही स्लोप आता है। वो स्लोप ने क्या किया? बच्चे ने तो हाथ से नहीं छुआ स्लोप, लेकिन वो स्लोप पे जब पैर पड़ा है धम से, तो वो जो धम की इंफॉर्मेशन है वो एकदम प्रेशर जब आया है तो वो हिट करता है ब्रेन को कि मैं अभी किसी और जगह पहुंच गया हूं। तो चलते चलते स्मेल है, हियरिंग कहीं पार्शियल होगी, दिमाग में एक नक्शा बन रहा है, लेकिन प्रेशर कराए कि ये जगह तो मैंने ओरिएंटेशन के टाइम पे जब विपाशा बता रही थी कि हम एनवायरनमेंट ओरिएंटेशन कराते हैं, बाथरूम ओरिएंटेशन कराते हैं, रूम ओरिएंटेशन कराते हैं, प्लेग्राउंड ओरिएंटेशन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं चलते चलते जरूर ये जगह आती हैं। और हम लोगों का ये कहना है कि छोटे बच्चों को, छोटे डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करते समय उनको शूज, सॉक्स, सैंडल, स्लीपर्स ना पहना के
बेयरफुट अगर इस तरह की वॉक कराओगे तो उनको बहुत ईजियर रहेगा डिफरेंसेस पता करने में। फर्श के बीच में उभार आती है लाइन, वो पता लगता है, या उबड़ खाबड़ है रास्ता, वो पता लग जाता है। तो इसके लिए हमारा ये जो काइनेस्थेटिक सेंस है ये हमको सपोर्ट करता है। हम कई बार हम लोग कोई चीज उठाते हैं, एक मेरे लेफ्ट में मैंने अगर घुंघरू उठाया और राइट पे मैंने एक छोटा ब्लॉक उठाया, तो मेरे को जॉइंट से पता लगा कि ये हल्का है, ये भारी है। और ये प्रेशर ने, क्योंकि जो भारी होगा ऑटोमेटिकली वो साइड मेरी लेफ्ट नीचे झुक जाएगी और राइट साइड मेरा ऊपर हो जाएगा। तो वो जो प्रेशर है उसके थ्रू इन लोगों को पता लगता है। और इसी में इनके प्रोप्राइसेप्टिव सेंस है, जो कहते हैं कि बच्चा चलते चलते बहुत अच्छी स्पीड में आता है और एक जगह जाके ढंग से रुक जाता है। वो परसेप्शन है उनका कि चलते चलते उनको कहीं ऐसा लगा कि कुछ शेड आगे है और वो वहां पे अपने आप को रोक लेते हैं। तो जो प्रेशर लेके चलते हैं, जब हम चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेशर आगे को होता है और आगे को चलते चलते एकदम से स्टक कर जाते हैं। तो ये सारा हमारे को थ्रू काइनेस्थेटिक सेंस इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अभी ब्रिज में भी आपको मोबिलिटी के बारे में बताएंगी। अभी तक ओरिएंटेशन के बारे में हुआ, लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि मोबिलिटी और ओरिएंटेशन हम लोगों का दो हाथ है। तो अभी ओरिएंटेशन हो गया तो मोबिलिटी शुरू है, लेकिन हमेशा वो एक साथ रहते हैं। They're both very much integral part of each other, and you have to first have an orientation before you can introduce any kind of mobility training. Okay. क्योंकि ओरिएंटेशन का मतलब ही ये है कि जहाँ जा रहे हैं डेफ ब्लाइंड बच्चे को लेके, पहले उसको फिजिकल हेल्प करते हुए घुमाना। इस कमरे में बहुत बड़े बड़े एरिया में नहीं जाके ओरिएंटेशन होता, इसी रूम के अंदर बहुत बड़ा ओरिएंटेशन है कि दरवाजे से लेके इस टेबल तक आना है। तो बच्चे को पूरे रूम के अंदर ट्रेल कराना, कमरे का बताना, स्विचेस कहाँ पर है, जहाँ से आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, वहाँ बार बार ऑन ऑफ करने के लिए अपने आप को नहीं ऑपरेट करना, ये सब बताना। उनके अंदर कॉन्फिडेंट को डेवलप करना कि चेयर से दरवाजे की डायरेक्शन में कैसे जाना है, वहाँ के लिए बच्चा तैयार है कि नहीं है। क्योंकि ये पोजीशन सुनने के लिए हम लोग तो डिपेंड होते हैं आवाज़ पर, ब्लाइंड बच्चा भी डिपेंड होगा आवाज़ पर, लेकिन इस बच्चे के लिए तो कम से कम रेपिटेशन इतनी बार होता है कि जब उसके पास एक जगह का ओरिएंटेशन होता है तब हम दूसरी जगह पहुँचते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंडिपेंडेंटली, कॉन्फिडेंटली, सेफली, एफिशिएंटली और ग्रेसफुली। कई लोगों को लगता है कि ये तो कर लेते हैं, चल लेंगे और कैसे अकेले छोड़ेंगे, बट मोबिलिटी टेक्निक से कहती है कि ये तभी संभव है जैसे एक बच्चे के लिए ब्रेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही उनके लिए मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल, मूविंग, मूवमेंट, फ्री मूवमेंट विदाउट फियर, ये सारी स्किल्स को उनके अंदर डालना है। और इसीलिए मोबिलिटी इज नॉट एनी काइंड ऑफ मशीन और इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ स्किल। और इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मेंटल ओरिएंटेशन और एक होता है फिजिकल लोकोमोशन। मेंटल ओरिएंटेशन वो है जो टीचर बैठकर बताती है हाथ के थ्रू कि अब हमको वॉक करना है, हमको जाना है, और जाने के लिए मे बी वो स्विंग पे ले जा रही है, उसको स्विंग का साइन दी है, या टेम्पल ले जा रही है तो पूजा का साइन दी है। लेकिन इन बच्चों के लिए साइन भी अलग अलग होते हैं जो हम सिंबल्स के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि हम एक सिंबल को दूसरे के साथ, जैसे मुझे अगर टेम्पल जाना है तो जो टेम्पल का साइन होगा वो हमारा वापस प्रेयर का साइन नहीं होगा, कि स्कूल की प्रेयर और टेम्पल दोनों के साइंस में डिफरेंट है। और जो रूम और ओरिएंटेशन की जब हमने बात की थी तो हम लोग सिंबल्स भी यूज करते हैं। वॉशरूम के बाहर क्या सिंबल है, क्लासरूम के बाहर क्या सिंबल है, थेरेपी रूम के बाहर सिंबल्स क्या होना चाहिए, प्लेग्राउंड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, मोबिलिटी क्लास जाने के लिए जो प्रिपरेशन देनी है कि एकदम हाथ पकड़ के खींचा और उसको मोबिलिटी ले गए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि मोबिलिटी देने से पहले बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है तो उसके कार्ड्स वगैरह को यूज करते हैं, जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट कार्ड होता है जिसको कहते हैं, उसमें वो जब वो देख लेता है और उसको टाइम देते हैं, पॉज। ये नहीं कि टीचर ने बोला कि चलो मोबिलिटी है 20 मिनट्स है खड़े हो जाओ, उसको देना है, देन वो मेंटल मेकअप कर रहा है, क्योंकि हमारा मेंटल ओरिएंटेशन, मेंटल मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए। और जब मेंटल मेकअप हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो उसको पता है कि अगर मुझे आउटडोर मोबिलिटी जाना है तो केन हाथ में होनी है, और फिर उस पर हम फिजिकल लोकोमोशन के लिए तैयार होते हैं कि अब उस जगह पर जाने के लिए बच्चा केन के साथ तैयार है और टीचर उसको सपोर्ट करते हुए लेके जा रही है।
कोशिश ये करते हैं कि बच्चा अपने आप जाए, और अगर अपने आप नहीं जा पाता तो पीछे से पुश करने के लिए स्लाइटली एक फिंगर दे दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके साथ साथ चलते जाते हैं। और शुरू में ही बोला था कि जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी होती है उसमें सबसे पहले सेम ओरिएंटेशन की तरह अगर हमारे बच्चे को बॉडी अवेयरनेस नहीं है, अपने बारे में नहीं पता, तो हम टर्निंग्स के बारे में कैसे डायरेक्शन देंगे। और टर्निंग्स के लिए ये है कि पहले केन, पहले फिजिकल सपोर्ट, फिर केन के साथ चलना। यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स की आपके टॉप में क्या है, बॉटम में क्या है, और हेड एंड नेक कंट्रोल बच्चे का है या नहीं है। हम लेके जबरदस्ती केन दे रहे हैं और बच्चे का पूरा प्रेशर अपने कंट्रोल और नेक के ऊपर है, तो कैसे उसको केन होल्ड करवाना है। बच्चा, कई बच्चे डेफ ब्लाइंड में जो होते हैं जरूरी नहीं होते कि वो फिजिकली एकदम फिट हो, कई बच्चों में फिजिकल इम्पेयरमेंट भी साथ साथ होती है। तो इनके अगर फिजिकल इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फिजिकल चेयर्स यूज कर सकते हैं जिनमें मूवेबल है, जो मोबिलिटी टूल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और सबसे मेजर जो है डेफ ब्लाइंड के लिए वो होता है वाइब्रेटिंग टॉयज। अब बोलेंगे वाइब्रेटिंग क्या होता है, तो हम लोग हंगामा, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, आप उसको इस लकड़ी के ऊपर अगर मैं रखूंगी तो वो बॉल्स जब साउंड करेगी तो वो वाइब्रेशन इतना एंजॉय बच्चा करता है कि पूरा बॉडी उसकी शेक करती है। और वो शेकिंग बॉडी जो है उसको, उसके लिए सबसे फेवरेट एंड लविंग टॉय है, क्योंकि जो आवाज, बच्चे आवाज वाला सुनना पसंद करते हैं, हमारे ये बच्चे वाइब्रेशंस बहुत पसंद करते हैं। अगर कोई दरवाजा खोलो, बच्चा बहुत शार्प है, सिर्फ डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस है, लेकिन दरवाजे की जो प्रेशर जोर से आता है, वो एक एयर, उसको हवा का इफेक्ट आता है, हवा का जो झोंका आता है उससे वो पता लगता है। आपको चलते चलते आपको साइकिल पास कर गई और मैं तो उसको सिर्फ लेके जा रही हूँ कि मार्केट जाना है, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली अपना सिर घुमाया कि कुछ चीज गई है, शायद वो फिर इंतजार कर रहा है कि ये लौट कर आए फिर मैं फील करूं, क्योंकि जो चीज आती जाती है वो शायद इतना ना रुक पाए, लेकिन बच्चा फील करने की कोशिश करता है थ्रू वाइब्रेशंस। और सेम रोड क्रॉस करते हुए वही है कि गाड़ियां जोर से जब आती हैं, जोर से जाती हैं, तो वो ही एक वाइब्रेशन है। हम और बच्चों को बोलते हैं, टोटली ब्लाइंड को या पार्शियल ब्लाइंड को, कि मैं, आपकी गाड़ी राइट से आ रही है, मैं लेफ्ट में खड़ी हूँ। ये फीलिंग्स हम इनको देने के लिए ऑब्जर्व करेंगे कि जहां से ट्रैफिक आ रहा है क्या उनका हेड उस तरफ मूव करा कि नहीं करा, और करा है तो मीन्स वो फील करते हैं कि इस समय इधर से आ रहा है और हमको क्रॉस करके स्ट्रेट वॉक करके किस तरह जाना है। और इसी तरह प्रॉपर सिटिंग एंड स्टैंडिंग मोबिलिटी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि कई बार बच्चे बैठ जाते हैं तो पूरे बेंड हो जाते हैं, तो उनको किस तरह बैठना है, किस तरह उनकी पोजीशन होनी चाहिए, वॉकिंग विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट। क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि डेफ ब्लाइंड बच्चे को तो कभी हमें अकेले छोड़ना ही नहीं है, हमेशा उनके साथ जाना है, लेकिन शायद ऐसा नहीं। एक समय कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड होती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर हम नहीं कर सकते। कई बच्चे होते हैं जो बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं, कर सकते हैं और आज कर भी रहे हैं, और कई होते हैं जिनको हमेशा साइटेड गाइड टेक्निक की जरूरत पड़ती है कि कोई साइटेड रहे जिसके थ्रू वो लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सकें। बट कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इंडोर ओरिएंटेशन में, इंडोर मोबिलिटी के टाइम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए विदाउट सपोर्ट अगर चला जाए और एनकरेज किया जाए, तो ये एनकरेज हमारी है कि हमको उसको इतना एनकरेज करना है कि आप खुद जाओ, मैं वहां पहले पहुंच रही हूँ, तुम वहां पर खुद पहुंच जाओ। मूविंग इन होम एनवायरनमेंट, कई बार हम पेरेंट्स क्या करते हैं, घर की लुकिंग को गुड लुक बनाने के लिए ड्राइंग रूम को, सेटअप को बिना बोले चेंज कर देते हैं, बिना बोले हम लोग चेंज कर देते हैं और बच्चे को पता भी नहीं लगता, और बच्चे को पता भी नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है। और हम बोलते हैं कि अचानक कहीं खुदाई कर दी बाहर पार्क में, क्योंकि वहां माली को एक गमला डालना था, लेकिन टाइम खत्म हो गया, उसका 5 बज गया, वो घर चला गया और वो गड्ढा एज इट इज खुदा रह गया। चाहे वो गड्ढे की डेप्थ ज्यादा ना हो, लेकिन इन बच्चों के लिए तो वो डेप्थ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनको बताया नहीं गया था टीचर्स के थ्रू या केयर गिवर्स के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू कि हमने वहां पर एक गड्ढा हो रखा है या कर रखा है, आज तुम बाहर मत जाना। या हम इतना अलर्ट होते कि हम आज उसको अकेले नहीं छोड़ते, लेकिन सडनली ऐसा हो जाता है कि कभी बच्चा निकल जाए और गड्ढे में गिर जाए तो लग जाए, तो उसका इतना हार्म होता है कि वो नेक्स्ट टाइम से
अकेले जाने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। तो ये जो थोड़ी थोड़ी जो सेफ्टी रूल्स है कि सराउंडिंग्स में और एनवायरमेंट्स में जो सेटअप्स करने हैं वो हमको करने के लिए उनको प्रिपेयर करना है। चेयर्स की पोजीशन है, एक डेफ ब्लाइंड बच्चे की पोजीशन में अगर ये चेयर है और ये ओरिएंटेशन हुआ था हमारे साथ कि कमरा, दरवाजा और चेयर्स, लेकिन हमने अपनी कंफर्ट के लिए चेयर्स की पोजीशन चेंज कर दी और हमने चेयर्स को उठा के दूसरी डायरेक्शन में कर दी, तो वो बच्चा उस दिन बहुत अपसेट होता है, उसकी मेंटल प्रिपरेशन का पूरा मैप डिस्टर्ब हो जाता है और वो नहीं समझ पाता। तो इसीलिए मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, आइदर टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स और जो उन बच्चों को डील कर रहे हैं उन लोगों को ये है कि जब अगर सेटिंग ज़रा भी चेंज होती है, वाकई बहुत छोटी बात है, लेकिन हम स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर हम लोग इन बच्चों के लिए काम करते हैं, डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए, तो हमें इन छोटी छोटी बातों पे बहुत गहराई से ध्यान देना है। तो शायद ये जो उन लोगों को जो कहते हैं ना एक थोड़ा अपसेट हो जाना और एकदम चेंज देखना अपने आप को, और हमसे थोड़ा सा अपने आप को रिलेट ना करके एंगरनेस आ जाती है जो उनमें, उसको अगर कम करना है और उनके फियर को, जो फियर हमने बहुत मेहनत से हटाते हैं और फिर वापस शुरू हो जाता है, वो ना हो ये कंडीशन, तो हमें ऐसी सिचुएशन नहीं देनी है। कोशिश ये करनी है कि जब भी सेटअप करें ओरिएंटेशन उनको जरूर कराते रहें। ये मतलब आप जो कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, और जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो है उसमें ये हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट देयर इज़ नो सडन चेंज and there is no sudden sort of variation in a routine, so that the child is able to learn. And one of the, as you said rightly, one of the setbacks जो हो सकता है कि if the child falls and hurts or is disoriented, then the child's motivation to learn or to continue in that area will be affected and adversely. Definitely. इवन ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन भी है कि हमने देखा कि होता है कि नए लोग आते हैं, फिर नए लोगों से इन बच्चों का ये होता है कि रैपो बिल्डअप में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सोच सकते हैं हम कि जब देख नहीं रहे और सुन नहीं रहे तो सब कुछ टच के आधार पर है या स्मेल के आधार पर है। आप बहुत बार साइन लैंग्वेज के थ्रू या पूछ सकते हैं किसी डेफ ब्लाइंड बच्चे से जो बहुत स्मार्ट एंड बहुत शार्प होगा कि अभी कौन आया है, जो थ्रू साइन लैंग्वेज या थ्रू उनका जो पाम रीडिंग होता है उसके थ्रू, तो वो आपको बता सकते हैं कि कौन आया है। अब आप सोचिए उन्होंने कैसे बताया है कि ये कौन आया है, क्योंकि उनके माइंड में उनका कॉन्सेप्ट, उनकी फीलिंग्स, उनका आते समय एक फ्रेग्रेंस जो होती है वो फील करता है। और ये हमने खुद पूछा है कई बार बच्चों से कि आपको बिना बोले कैसे पता लग जाता है कि कौन आया है, तो वो कहते हैं मैम हमको पता है, हमें आहट से पता लगता है, कौन फास्ट वॉक करता आता है, कौन स्लो वॉक करता आता है। सो ये सारी फीलिंग से देखा जाए तो सच में हम ही तो उनसे सीख रहे हैं कि वो हमको बता रहे हैं कि मैम ये जो टेक्निक्स है। हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम एक्चुअली उनसे सीखते हैं, और हम जो there's so many small things that you tend to take for granted and you do not even acknowledge that these matter, but the feedback to persons with deaf blindness comes from these areas. जैसे आपने कहा कि she might recognize or immediately detect that a new person has come into the room from even an aura or a smell or a fragrance that that person exudes, or the, as आपने जो कहा, the pace at which they walk for instance and things like that. Many time हम लोग बहुत बार बच्चों से पूछते तुमने कैसे बोला, एंड दे कैन फील कि वो तुरंत बताते हैं कि फला मैम आई है, या साइन से भी बता देंगे जो हम लोगों को नाम दे रखे होते हैं साइन। दे इंजॉयड अ लॉट, उन लोग भी बहुत मजे करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बट जो हम लोगों का काम होता है कि हम भी प्ले वे मेथड से उनको अपनी स्किल्स उनको देते रहे, कि जो स्किल्स के थ्रू उनका डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुली, कॉन्फिडेंट डेवलप होता रहे, और वो ये लगे कि टीचर्स हमारे साथ या हमारे एजुकेटर्स हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, क्योंकि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज चिल्ड्रन। सेम हियर कि आपने शायद कभी देखोगे कहीं पे स्टेयर क्लाइंबिंग कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए कौन सी पोजीशन में चलना है। स्टेयर क्लाइंबिंग में अगर दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम साइटेड गाइड टेक्निक, तो किस तरह गाइड उसको हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइटेड गाइड टेक्निक में कोई वर्बल प्रॉम्प्टिंग नहीं होती, बस फिजिकल मूवमेंट हो रही है कि गाइड आगे चलता जाता है और उसके पीछे
डेफ ब्लाइंड बच्चा या पर्सन हेल्प लेता चलता है। तो जितने भी जो काइनेस्थेटिक सेंस की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है कि वो जो प्रेशर्स है, वो जो मूवमेंट्स है, जो स्टॉप एकदम रुकता है सीढ़ी के एक एज पे जाके, वो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स वहां उसको पहुंच जाती है और वो अपनी कंडीशन या अपनी और फिर वो डायरेक्शन जो लेना होता है, पोजीशन, वो ले पाते हैं। सो यही है हमारे स्किल्स के टेक्निक्स। और हम साथ में कहते हैं कि मोटिवेशन ऑफ मूवमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। बहुत बार ऐसा देखने में लगता है जब कई बार लोग बोलते हैं कि हम छोटे बच्चों के साथ काम नहीं करना चाहते, हमें बड़े बच्चों के साथ काम करना है। छोटे बच्चों के साथ काम करने का वाकई बहुत मज़ा है और छोटे डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ आपको सीखने का भी बहुत मज़ा आ सकता है, क्योंकि ये बच्चे एक्सप्लोर कम करते हैं, छोटे खास बच्चे, छोटे बच्चे। और वही एक ऐसा पीरियड होता है जहां हमें उन्हें बार बार एक्सप्लोरेशन के लिए प्रिपेयर करना है। आप उनके हाथ में कोई चीज़ दोगे तो दे स्टार्ट प्ले विद, अपने ओन माउथ से सिर पे बैंगिंग करना शुरू कर देंगी, टक टक कहीं बजाएंगी, क्योंकि वो टक टक की जो एक फीलिंग है वो उनको कहीं ना कहीं अच्छी लगती है जी। लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सप्लोर जब करना है कि 2 कटोरी रखी है या एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट रखी है या एक कच्चा सरफेस और एक पक्का सरफेस रखा है, हम उसके थ्रू बाय टच, बाय फीलिंग्स बताना चाहते हैं कि अभी हम कहाँ हैं, पेड़ और पेड़ का खुरदरापन। सो वो बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं। वो जब एक्सप्लोर करता है तो एक दिन ऐसा आता है कि टीचर का वो हाथ पीछे कर देता है और खुद सराउंडिंग में उसको एक्सप्लोर करके देखना चाहता है। और वही हमारा मोटिव है कि जिस दिन बच्चा कहे कि आप छोड़ो मैं खुद करूँगा, तो हम वही चाह रहे हैं कि हर बच्चा इस लायक बने, इस कंडीशन में बने, जिसके लिए हम सब लोग को मिलकर आगे बढ़ना ही होगा कि इनको मूवमेंट और एक्सप्लोरेशन देते जाना है। क्योंकि अगर ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि टाइम फिर और लेट होता जाता है। लेकिन एक्सप्लोरेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी जल्दी उनकी नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक्सप्लोरेशन की जो वो आपने जो भी इसके बारे में कहा था, दैट रियली इज द फर्स्ट स्टेप यू वुड से? यस, to because we are first step of intervention with right. children with deaf blindness, because that is the method through which they actually start learning, right. And the sooner you do it, the better. The earlier, basically underscoring what we always keep saying in all, it actually applies to all disability areas when we say early intervention is so crucial and so important. But in cases of children with more than one disability, it becomes even more sort of important and critical, I suppose. So, और सेल्फ बैलेंसिंग जो हमारी काइनेस्थेटिक में आती है, कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग द पोस्चर। और इन बच्चों की मोबिलिटी के लिए मूवेबल टॉयज बहुत हेल्प करते हैं। अब मैं मूवेबल टॉयज में छोटी छोटी गाड़ियाँ जिनको लेके उनको पुश करना, वो गाड़ी उनके लिए खेल है, लेकिन एक मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के लिए, एक एजुकेटर के लिए बहुत बढ़िया साधन है कि हमें पता लग रहा है कि बच्चा विदाउट फियर आगे मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है, तो मेरे को नेक्स्ट स्टेप मिल गया कि मुझे अब लेकर इसको केन शुरू करनी है, या मुझे लेके इसको अब इंडिपेंडेंट करना है कि वॉल से ट्रेल करके ही कैन गो इंडिपेंडेंटली वॉशरूम, प्ले ग्राउंड, प्रेयर ग्राउंड। लेकिन अगर बच्चा मूव ही नहीं कर रहा, वो एक डर है और हाथ से छोड़ के नीचे बैठना चाहता है, तो वो कंडीशन ऐसी है जहां पर मुझको उसके लिए प्लान करना है, कैसे ऐसी सिचुएशन लाऊं कि इसकी नीज स्ट्रेट हो, ये चलने को तैयार हो, ये मेरा हाथ बहुत, एक हम लोगों के कहते हैं ना टच, हमारी जो ग्रिप होती है वो ग्रिप पता लगती है कि ये ग्रिप फियर में है या ये ग्रिप कॉन्फिडेंट में है, तो वो ग्रिप हमें नोट करना है। सो ये सब चीजें ध्यान दी जाती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने जो कहा जी, ये द ग्रिप ऑफ फियर और ग्रिप ऑफ कॉन्फिडेंस, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिटेक्ट दैट फाइन डिफरेंस and use that to work with the child. रैपो बिल्डअप ऐसे ही होता है, जैसे हम उनका टच देख के हमें पता चल रहा है कि उनके अंदर डर है या वो बहुत कॉन्फिडेंसली फॉरवर्ड होना चाहते हैं, ऐसे उनको भी पता चलता है हम लोगों का वाइब्रेशन से, हम लोगों का मतलब टच से कॉन्फिडेंट है बच्चे के साथ काम कॉन्फिडेंट है, हम एग्रेसिवली उनके साथ है या नहीं, हमें बहुत प्यार से उनको समझाए हैं, अभी हम लोगों का मूड अच्छा है, तो they can also understand. Yeah. And I think we need to respect that that particular definitely. Ability of every person, however severe the disability may be. We need to respect that and use that to be able to work.
We'll take a very short break now and be back to discuss this very interesting and exciting aspect of orientation and mobility. I think all of us who work in the disability sector are aware of the complexities of our work, and when we are confronted with situations where there is more than one disability, then the situation takes on a totally new dimension, and we need to really look at it in a sort of very how to say, innovative and creative way, Yes, and yes. bring in the best of our whatever resources and information that we have to work with these children. So we please do keep watching. We'll be back with you in a very short while, and we'll continue our discussions.